So this is the page where you sign in, right? And very similar to any other web application you might have used, either your Gmail, Yahoo, कोई भी banking application, right? The first and foremost thing is you have a username and a password, right? To log into that application or to get into that application. राइट उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे उस दिन कि वी हैव दिस इज अ मल्टीलिंगुअल और दिस एप्लीकेशन सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस. So when we say that this language supports multiple languages, you can see over here, these are the languages which are supported, and I will select the language depending on which region I am present, right? And accordingly, this is going to be changing the labels over here. Abhi notice karo, this is user ID, password, forgot password, right? These are the labels which are appearing. As soon as I select any other language, let's say French, you can see over here the instructions and everything have changed into French language. नाम मैं अपना उसी में लिखूंगा इंग्लिश में ही, whatever is there, जो भी मेरा यूजर नेम है, ठीक है, but the labels have changed as per the language which I choose over here. I'll switch back to English. ठीक है, तो वापस से इंग्लिश में it is displaying the labels. So let's log in within the application जो मेरा यूजर है उसके साथ. We click on sign in. ठीक है, this is the home page where we are going to be navigated. इसको क्या बोलते हैं? What was told to you? ये जो नेविगेटर, राइट? ये जो हैमबर्गर का साइन है, राइट, 3 लाइंस है. दिस इज योर नेविगेटर. नेविगेटर, हाँ, नेविगेटर, नेविगेशन नहीं, नेविगेटर. ठीक है, ये जो है, दिस इज द लोगो विच इज अपीयरिंग इन केस you know your client logo is there and other things are there, they are going to appear over here instead of this Oracle's logo. ठीक है, जैसे हमारा वो रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी वेब ब्राउजर पे, if I am going to make certain bookmarks or I'm going to create certain favorite items, so on the application also, if you are going to do a task which is very frequent in nature, you can create your favorites over here so that you don't have to follow the entire process of navigating to that screen. आप लोगों ने फेवरेट बना लिया तो बस फेवरेट पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ है तो यहाँ पे, then we can easily navigate over there. Apart from favorites, recent items भी नजर आएंगी यहाँ पे. अगर मैं सप्लायर्स पे गया था तो मैनेज सप्लायर्स करके यहाँ पे वो पेज नजर आ रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर. इसके बाद इफ the application is going to send me certain notifications, मुझे notification, see this is a very intelligent application in the sense if there are tasks which are pending for me, right, as a result of certain workflow which has happened. Workflow का मतलब बड़ा simple है. जब हम approval hierarchy की भी बात कर रहे थे, right, एक बंदा है who is going to submit any kind of application or a request. It could be probably your resource request in case of your human resources, right? Or it could be a request for certain goods or services in case of purchase requisition and all, right? तो जब मैं सबमिट करूंगा वो रिक्वेस्ट, तो वो किसी अप्रूवर के पास जाएगी अप्रूवल हायरार्की में. तो एक चीज तो है कि वो अप्रूवर लॉग इन करे एप्लीकेशन में 24 घंटे और देखता रहे कि व्हाट टास्क इज असाइंड टू मी, या मुझे क्या करना है. और दूसरी ऑप्शन ये है कि सिस्टम उसको ईमेल नोटिफिकेशन भेज दे, और whenever he logs into the application he gets notified here also under this bell icon कि मुझे और क्या क्या करना है. What tasks are pending for me, okay? Or if there is not a task which is pending on me but there is some information which might be useful for me, तो मेरे पास for your information या FYI notification करके आ जाएगा एप्लीकेशन में. इतना क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है बट आगे जैसे चलेंगे तो नोटिफिकेशंस भी यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? यस सर. Yes, sir.
इस सारे पेज को राइट, ये जो जहां पे स्क्वायर आइकॉन्स और ये सब चीजें लगी हुई हैं, इसका अगर आप इंटरफेस देखोगे, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू आवर आईपैड काइंड ऑफ अ थिंग, या मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर जो मोबाइल पे हमारा रहता है स्पेशली आईफोन के ऊपर, वैसा सा कुछ इंटरफेस है राइट। इस एरिया को हम लोग स्प्रिंग बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोर्ड। Springboard. ठीक है, these are all different tabs over here, right? If I click on a tab, the icons on the springboard are going to change, right? The tabs which appear over here are dependent on the roles which are assigned to me. We discussed earlier, right? Whatever I can do within the the application, right, is dependent on what roles have been assigned to me. Yes or no? Yes. Yes, sir. अगर तुम देखोगे तो यही जो रोल्स भी हैं राइट, सॉरी ये जो टैब्स हैं यहाँ पे जो नजर आ रही हैं, दिस इज द सेम लिस्ट व्हिच इज अपीयरिंग ओवर हियर इन द नेविगेटर आल्सो। मी, माय टीम, माय क्लाइंट ग्रुप्स, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब चीजें राइट, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब यहीं पे हैं। अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो भी सारी लिस्ट वही दिखेगी जो यहाँ पे है। बट इस स्प्रिंग बोर्ड पे वी कैन कस्टमाइज, नॉट कस्टमाइज सॉरी, पर्सनलाइज अवर स्प्रिंग बोर्ड। पर्सनलाइज मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारे इतने ज्यादा टैब्स देखूं राइट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 3 टैब्स। इफ आई नीड टू एक्सेस अदर टैब्स आई कैन गो टू नेविगेटर। नेविगेटर को आप लोग पर्सनलाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ ऑफ व्हाट फंक्शंस यू कैन परफॉर्म विद इन द एप्लीकेशन। बट ये जो है स्प्रिंग बोर्ड, इसको मैं पर्सनलाइज कर सकता हूं। मैंने ऐसे पर्सनलाइज कर सकता हूं, अगर मैं ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, पर्सनलाइज स्प्रिंग बोर्ड करके आ रहा है राइट, तो आई कैन सिंपली से कि मुझे मी वाला देखना ही नहीं है, या फिर मुझे माई टीम नहीं देखना है फॉर एग्जाम्पल राइट, मैं माई टीम दोनों को अनसिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट वैसे नहीं देखना है, बेनिफिट्स को भी मैं अनसिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सेव एंड क्लोज क्लिक करूंगा राइट। हियर यू कैन सी जो वो थे बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन और ये यहां से गायब हो गए हैं, दे आर नॉट एनी मोर विजिबल ओवर हियर ऑन द स्क्रीन राइट। कैन यू सी दैट? बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज अर्लियर अपीयरिंग ओवर हियर, बट नाउ दैट इज नॉट विजिबल। अगर मैं पूरा भी दिखा दूंगा तुम्हें तो दैट इज नॉट विजिबल ओवर हियर। दिख रहा है कहीं पे? नो सर। No, sir. राइट, बट अगर मैं नेविगेटर पे देखूंगा तो आई स्टिल हैव द बेनिफिट्स और वो सब चीजें, ये रहा बेनिफिट्स राइट। नेविगेटर को छेड़खानी नहीं कर सकते हैं राइट, वी कैन नॉट चेंज और वी कैन नॉट make it disappear over here on this navigator window. But the springboard, which is my kind of a home page or a desktop, whatever you can say, here we can do a lot of personalization. I can personalize it as per my requirement. ये जो व्यू है, this is only for the user राधेश। अगर यही तुम करोगे या कोई और यूजर करेगा तो they will have the default view and they can personalize it as well. ठीक है, अगर मुझे वापस से आई वांट टू मेक इट विजिबल, आई अगेन क्लिक ऑन पर्सनलाइज स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, आई गो टू माय टीम, आई क्लिक व्हाटएवर आई वांट टू मेक इट विजिबल अंडर माय टीम। सिमिलरली बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन का आई क्लिक ओवर हियर एंड आई सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज, और यहाँ पे देखोगे तो बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो ये चीज है जो हम पर्सनलाइज बोल रहे हैं राइट, दिस इज अ पर्सनलाइजेशन। एंड व्हाई डू वी कॉल इट एज अ पर्सनलाइजेशन? बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक टू अ यूजर राइट। ये यूजर अपने लिए पर्सनलाइज कर रहा है कि मुझे अगर अपने घर का पेंट है राइट, मुझे कुछ और वो करना है तो मैं अपने हिसाब से करूंगा राइट। सिमिलरली जो मुझे देखना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं अपनी स्क्रीन के जो देखना चाहता हूँ, आई विल ओनली व्यू दैट, आई विल नॉट व्यू एवरीथिंग एल्स। अभी यहाँ तक क्लियर है राइट? Like how we log in, what is this page, the home page, the springboard and all, right? This is all clear to you guys. हम लोगों ने डिस्कस किया था about roles and user, right? So I hope everybody is clear that the employee and user is a different object altogether, right? So a Yes, user sir. might be an employee or a contingent worker, or it might be an
implementation user which is not attached to either any employee or any contingent worker. And similar to that, every employee need not be a user as well. Similarly, every contingent worker also need not be a user defined in the application. ठीक है कि हर employee जरूरी नहीं है कि वो user हो. Similarly, हर contingent worker जरूरी नहीं है कि वो user हो. And same way, it is not necessary that every user is associated with an employee or a contingent worker. It can simply be an implementation user as well. ठीक है. अगर मुझे list of existing users देखने हैं या फिर हमें ये देखना है कि उस user को कौन-कौन से roles assigned हैं, right? Then I will go on to Navigator. Navigator में एक टैब, यहाँ पे इधर टैब है बट यहाँ पे एक ग्रुप है टूल्स करके. टूल्स के अंदर देयर इज अ लिंक टू सम फंक्शनैलिटी व्हिच वी कॉल एज सिक्योरिटी कंसोल. Security console is not going to be available to all the users. Security console is a administrative job where we define or where we go and look at what users are existing in the application, what roles have been assigned to those users. Clear? Yes, sir. Here you can see, right, the roles tab is there. Roles tab में we can see the definition of a role. When I say definition of a role, मैंने उस दिन बताया था, right? First of all, roles are of 3 types: job role, abstract role, and duty role. The users can only be directly assigned either a job role or a abstract role. They can never be directly assigned the duty roles, right? Duty roles में there are duties, and within duties there are privileges. If we want to see this entire hierarchy, we can come here on the role screen and we can look at the hierarchy of that particular thing, right? वो भी देखेंगे अभी. सबसे पहले let's focus on the users part. If I click on the users tab, ठीक है, I can search on the users based on these criteria: username, email, last name, first name, and all. ठीक है, I'll try to search on the username. I don't need to provide any kind of a wildcard character. मैं simply RAD लिखूंगा, right, for Radhesh, and I'll click on search. Any users which contain this word Radhesh or RAD, they would appear over here. But username, right? अगर यही मैं first name में कर देता हूँ, right, you might see different set of results. Here there are 2 users. One is radhesh.soni, another is rks@globalminds.co.in, right? Depending on which field I used for searching, the results are different. ठीक है? अगर मुझे देखना है कि इस user पे is there any kind of contingent worker or an employee associated, and if I want to see which roles have been assigned to this user, I will click on this link. ठीक है, पहले मैं ये इम्प्लीमेंटेशन यूजर को क्लिक करके दिखाता हूं तुम्हें, which does not have any associated worker or any associated contingent worker. Worker or employee, we use it very interchangeably, so just bear with me on that. If I click on this link, you will see first of all over here, यहाँ पे there is no employee or a contingent worker information in this section. Yes or no? Yes, sir. इसको मैं एक बार डन कर देता हूं, and I click on the other user which has a associated contingent worker. यहाँ पे देख रहे हो associated worker information. Yes, sir. Right? जो कि पहले Yes, वाले sir. में नहीं थी. जो पहला था that was a implementation user, simple implementation user था. ये एक वो user है which is associated with a worker over here. सर सर एक बार वो वाला दोबारा से दिखा दीजिए. हाँ, अभी जाएंगे उसके ऊपर. अभी तुम सिंपल ये समझो कि ये यूजर है, राइट? और यूजर के साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच आई जस्ट टोल्ड, अ यूजर
can be associated to an employee or a contingent worker, or if we see the other user, it is not associated to either a worker or a contingent worker. ना वो contractor के साथ associated है, ना वो किसी employee के साथ associated है. It is a simple implementation user. Clear? Yes, sir. Yes. इस यूजर के साथ राइट ये मास्टर है, इसकी डिटेल ये है कि इसको ये रोल्स असाइंड है. दीज आर द डिफरेंट रोल्स. दीज माइट बी द जॉब रोल्स और दीज माइट बी द एब्स्ट्रैक्ट रोल्स. ठीक है, ये है जॉब या एब्स्ट्रैक्ट रोल. ठीक है, अब इसी रोल को अगर मैं लूंगा राइट, लेट्स से अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट लेते हैं. ठीक है, कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स गो बैक टू दी रोल्स टैब. और यहां पे हम लोग ये दिख रहा है जॉब रोल्स के अंडर अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट करके आ रहा है आपको राइट. Yes. वी जस्ट सिलेक्ट इट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स अपीयर ओवर हियर. यहाँ पे लिखा है हमने एक्सपैंड टुवर्ड्स प्रिविलेजेस राइट. सो व्हाट प्रिविलेजेस आर देयर पार्ट ऑफ दिस रोल, you can see this entire list over here. यहाँ पे कई बार देखना मुश्किल हो जाता है तो we typically do an export to Excel, right? Export to Excel करके we just typically open it और यहाँ पे हमें वो roles जितने भी हैं right, जो roles उसके साथ inherited है वो सारे के सारे दिख जाएंगे. क्लियर है? Yes, sir. अब हर एक रोल की इंफॉर्मेशन अगर आगे और देखना चाहते हो राइट, लेट्स अज्यूम पेबल्स इनवॉइस इंक्वायरी है, इसको कॉपी किया रोल को वापस से नाम उसका. ठीक है, एप्लीकेशन में गए और यहाँ पे जाके लिखा उस रोल का नाम और ये यहाँ पे आ गया. देख रहे हो अब ड्यूटी रोल्स दिख रहे हैं. पहले जॉब रोल दिख रहा था, अब ड्यूटी रोल है. ये ड्यूटी रोल है राइट. ये मेरे को जोन सा भी चाहिए, मैंने उसको क्लिक किया और यहाँ पे इसकी ये प्रिविलेज आ गई या ड्यूटी रोल आ गया. ठीक है, अगर एक्सपैंड टुवर्ड्स यूजर्स करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि ये जो रोल है ये किस किस यूजर को लगा हुआ है. ठीक है, ये इस रोल को आगे मतलब लगा हुआ है अगर हम ये ड्यूटी रोल की बात कर रहे हैं. बट यही अगर मेरा अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट वाला चीज होती जो हम बात कर रहे थे जॉब रोल की राइट, अकाउंट्स जो पहले हम देख रहे थे ये रहा राइट. अगर यूजर की बात करते तो यहाँ पे हम लोग देख पाते कि कौन से यूजर्स को ये लगा हुआ है. देख रहे हो? Yes, ये sir. सब यूजर्स हैं. ये rks@globalminds भी एक यूजर है, rajesh.soni भी एक यूजर है which we have created. नहीं, इम्प्लीमेंटेशन यूजर सिंपल है अमृतपाल के, जिसका साथ कोई भी एसोसिएटेड वर्कर या कंटिजेंट वर्कर नहीं है वो इम्प्लीमेंटेशन यूजर हो गया, और जो बाकी हैं वो एम्प्लॉय यूजर हो गया या फिर कंटिजेंट वर्कर यूजर हो गया. वो सर जो सिक्योरिटी कंसोल का एक्सेस है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल को ही मिलता है या मतलब सभी रोल? हाँ, सिक्योरिटी कंसोल का जो एक्सेस है वो टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटर रोल को ही दिया जाता है. जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है कंपनी में उसी को दिया जाता है. और एडमिनिस्ट्रेटर बंदा कैसे बनता है? व्हेन वी असाइन देम अ रोल कॉल्ड एज, एक रोल है जो हम असाइन करते हैं किसी को भी. ठीक है, मैं यूजर खोलता हूं इसका और तो मैं दिखाता हूं कि यही सेम राधेश एज अ यूजर अगर मैंने खोला तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे देयर इज अ रोल आईटी सिक्योरिटी मैनेजर. अगर मैं आईटी सिक्योरिटी मैनेजर रोल दूंगा किसी भी यूजर को या असाइन करूंगा, देन ओनली ही और शी विल हैव एक्सेस टू द सिक्योरिटी कंसोल वर्क एरिया. क्लियर है ये बात?
मैंने ये पॉइंट डे 1 पे ही बताया था, राइट, जब हमारी डिस्कशन हुई थी कि व्हाट आई कैन डू इन द एप्लीकेशन is governed by what roles I have been assigned. I, in the sense, the user has been assigned, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. the role which enables a user to have access to the security console is the IT security manager. ठीक है? Clear है इतना? Yes, sir. Yes, अब Yes, sir. अगर हम बात करें, राइट, कि इसके अंडरलाइंग टेबल्स और ये सब चीजें कैसे होंगी, तो यहाँ तक पता है कैसे डेटा मॉडल कैसे आते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? देखा था उस दिन, Yes, राइट, sir. हम लोगों ने राहुल Yes, सर के sir. साथ। अगर मैं Yes, sir. BI पब्लिशर वाले उस पे हूँ, राइट, जहाँ पे सारे एनालिसिस या फिर डैशबोर्ड्स या ये बनते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू पे जाऊंगा या क्रिएट पे जाऊंगा तो आई कैन क्रिएट अ डेटा मॉडल फ्रॉम हियर. Within data model, I will select which type of data model I am creating. In this case, I am creating a SQL query data model. तो मैं अपने data model का नाम दूंगा, let's say demo1. I will choose my data source. HCM के केस में हम लोग HCM करते हैं. These are all schemas, ठीक है, जिसके अंदर related tables दूसरी application के भी available रहते हैं. तो मैं अपने फाइनेंशियल्स और सप्लाई चेन के लिए वी चूज दिस स्पेसिफिक स्कीमा, एप्लीकेशन DB_FSCM, ठीक है. टाइप ऑफ सीक्वल स्टैंडर्ड सीक्वल ही चाहिए. सिलेक्ट फ्रॉम, अब यूजर्स का जो टेबल है, राइट, वो पर अंडरस्कोर यूजर्स है, राइट. अब इसमें कौन से कॉलम्स हैं, अगर सिलेक्ट स्टार लिख देंगे और अगर टेबल का नेम करेक्ट है और मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे. सिलेक्ट स्टार लिखा था तो सारे के सारे यहाँ कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है, राइट. अब अगर मुझे Yes, इसमें sir. से स्पेसिफिक कॉलम्स चूज करने हैं, जैसे मुझे यूजर नेम चाहिए और उसके साथ एसोसिएटेड अगर कोई पर्सन आईडी है वो चाहिए, तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस डेटा मॉडल, क्लिक एडिट, और स्टार की जगह आई विल रिप्लेस यूजर नेम कॉमा पर्सन आईडी कॉमा पार्टी आईडी, कुछ भी कॉलम्स जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है. और ओके, अभी देखो ये इसका साइज कम हो गया. अगर इफ आई वांट टू सी द डेटा एसोसिएटेड विद इट, आई विल क्लिक ऑन द डेटा टैब. मुझे ज्यादा देखनी है, व्हाट इज द रिजल्ट सेट, आई वांट टू सी हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, आई विल सिलेक्ट ओवर हियर, लेट्स से 200 एंड क्लिक ऑन व्यू. तो यहाँ पे ये सारा डेटा दिखा रहा है, राइट, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू व्यू द डेटा. सो आई माइट क्लिक ऑन द टेबल व्यू एंड यहाँ पे डेटा इस हिसाब से दिखता है जैसे हमें एक एक्सेल शीट में दिख रहा है, राइट. क्या यूजर नेम है, व्हाट इज द एसोसिएटेड पर्सन आईडी, व्हाट इज द पार्टी आईडी एंड सो ऑन. तो जो आरकेएस वाला यूजर है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, राइट, कैन यू सी इट माय स्क्रीन? Yes, sir. तो इसके साथ कोई भी पर्सन आईडी एसोसिएटेड नहीं है, राइट. इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन यूजर जो हमने क्रिएट किया हुआ था. बट इफ आई लुक एट राधेश डॉट सोनी वाला जो यूजर था मेरा, राइट, ये वाला, तो इसके साथ एक पर्सन आईडी एसोसिएटेड है विच इज माय वर्कर विच वाज एसोसिएटेड टू दैट यूजर. देख पा रहे हो? Yes, sir. तो जैसे मैंने कहा था, राइट, जो डेटा हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम सर्टेन टेबल्स वेयर इट हैज बीन स्टोर्ड. तो यूजर्स के केस में पर अंडरस्कोर यूजर्स करके टेबल है जहां पे यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. So you have an assignment to do over this weekend. You will have to search which table is used for storing the roles associated to a user and the role definition itself. दोनों different table होंगे. Role एक different object है जिसकी definition अलग table में होगी, और user और role कौन से यूजर को कौन से रोल्स असाइंड है, राइट, वो रिलेशनशिप किसी और टेबल में डिफाइंड होगा. तो ये दोनों डिफरेंट एक या मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, इसके बारे में तुम्हें लेकर आनी है इंफॉर्मेशन. क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, ये क्लियर है अभी तक कितना पॉइंट की यूजर्स क्या थे, रोल्स क्या थे, मतलब एटलीस्ट अभी दिमाग में है कि यूजर किस तरीके किस हिसाब से दिखता है, और फिर रोल्स क्या है, रोल्स के अंदर हमने देखा था ड्यूटी रोल्स क्या है, वो क्या है, राइट. देयर इज अ हायरार्की व्हिच आई जस्ट शोड यू ऑन दैट एक्सेल शीट, राइट, that a specific role was inheriting around 100 or I don't know 100 plus duty roles and job role का combination and so on, right. देखा था ना कि नहीं guys? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है इस अभी तक के लिए तो बताओ. सर जो इम्प्लीमेंटेशन यूजर होता है क्या उसके पास नहीं पर्सन आईडी होती है? उसके पास पर्सन आईडी कैसे होगी यार, वो पर्सन एसोसिएट ही नहीं किया उसके साथ. ओके सर. अभिषेक वो तो दिखा भी दिया, बता भी दिया, राइट. तो वो तो क्लियर होनी चाहिए चीज कि एक इम्प्लीमेंटेशन यूजर जो है, और वो बोला भी है 10 बार सेम चीज कि इट इज नॉट associated to either an employee or to a contingent worker, right. It is just there for doing the implementation project tasks, and then probably that user is going to be disabled at later point of time. ठीक है. ओके सर. और किसी को कोई सहज, अमृतपाल, है किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं. No, sir. गौरव, Sir. No question, sir. श्रेया, श्रेया, are you with us or lunch? No, sir. I'm कोई here. क्वेश्चन है या सब No, clear sir. Clear है. दीपक? No, sir, no question. चलो ठीक है. सो लेट्स गो टू docs.oracle.com. ठीक है, अंडर क्लाउड एप्लीकेशंस क्लिक सी ऑल. यहाँ फाइनेंशियल्स या किसी भी जो भी एप्लीकेशन कर रहे हो, राइट, कल को सप्लाई चेन मैनेजमेंट या प्रोक्योरमेंट करोगे तो उसके रिस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक करके लेट्स नेविगेट टू दैट पेज. जब ये क्लिक करेंगे फाइनेंशियल्स पेज पे, राइट, वी विल लैंड ऑन दिस पेज. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये Oracle फाइनेंशियल्स 23A या क्या लिख रखा है, राइट. 23 इज योर ईयर. ओके, अभी 2023 चल रहा है, सो 23 इज द ईयर. और ये ABCD Oracle 4 मेजर रिलीजेस निकालती है हर साल में फॉर एवरी क्वार्टर. सिंस वी आर इन द फर्स्ट क्वार्टर इट इज डिस्प्लेइंग एज A. अगर सेकेंड क्वार्टर होगा तो B हो जाएगा, थर्ड होगा C, फोर्थ होगा तो D. सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पेज के ऊपर या वॉट एवर द अदर लिंक्स विच आर देयर, दे आर परटेनिंग टू Oracle फाइनेंशियल्स रिलीज 23A. अगर मुझे पुरानी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है तो आई कैन गो अ स्टेप बैक टू Oracle फाइनेंशियल्स 22D ओवर हेयर. ये क्लियर है? Yes, sir. नहीं, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये Oracle का क्लाउड है, राइट. यू डोंट हैव और द क्लाइंट्स डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी दैट दे कैन बी ऑन एन ओल्डर रिलीज. SaaS का वन ऑफ द एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ये है कि Oracle keeps on patching and keeps on upgrading your application by itself every quarter. ठीक है, तो 22D से आप पीछे हो ही नहीं सकते हो. ठीक है, तो 23A के अंदर अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, राइट, या इफ आई वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेबल्स विच आर देयर, आई विल गो टू ऑल बुक्स. डॉक्यूमेंटेशन, यूजर गाइड्स, इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स, वो सब यहाँ पे रहेंगी. ये इम्प्लीमेंटेशन है, वो यूजर हैं, राइट. बट इफ आई वांट टू गो फॉर द टेबल्स, ये डेवलपमेंट वाले सेक्शन में आएंगे नीचे, और टेबल्स एंड व्यूज फॉर कॉमन फीचर्स है एक, द वंस विच आर कॉमन अक्रॉस. ठीक है, देर आर फ्यू थिंग्स विच आर कॉमन अक्रॉस लाइक यूजर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड द वंस विच आर स्पेसिफिक फॉर फाइनेंशियल्स यू कैन व्यू अंडर फाइनेंशियल्स.
ठीक है। जो सप्लायर है, सप्लायर डज नॉट कम अंडर फाइनेंशियल्स, इट कम्स अंडर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं प्रोक्योरमेंट पे क्लिक करूंगा तो इट विल नेविगेट मी टू दी ओरेकल प्रोक्योरमेंट 23A डॉक्यूमेंटेशन पेज। आई विल क्लिक ऑन ऑल बुक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी डेवलपमेंट सेक्शन में आके आई कैन क्लिक ऑन टेबल्स एंड व्यूज फॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर सप्लायर मॉडल देखोगे, ये रहा सप्लायर मॉडल, राइट। टेबल्स क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल। POZ सप्लायर्स करेंगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है ब्रीफ में कि व्हाट इज दिस टेबल ऑल अबाउट, उसका स्कीमा क्या है, टेबल स्पेस, एनी हाउ स्कीमा एंड ऑल यू डोंट नीड टू वरी मच। प्राइमरी की इट कैन बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉलम्स और उसकी डिस्क्रिप्शन, राइट, वॉट एवर कमेंट्स आर देयर, दे कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल अ लॉट मेनी टाइम्स। ये क्लियर है? ये जो INT_INT करके जो टेबल्स रहते हैं, राइट, दीज आर योर इंटरफेस टेबल्स। दीज टेबल्स आर enabling you to import data from outside applications और external applications। INT करके ये इंटरफेस टेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो तुम्हें ये दिखेगा, दिस टेबल होल्ड्स दी सप्लायर इंटरफेस डेटा। इंटरफेस का मैकेनिज्म क्या है कि अगर मुझे किसी भी बाहर की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके वहाँ सप्लायर्स का डेटा है और उसको इंपोर्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो I will need to make use of this data, because all validations which are going to be done to ensure data integrity या फिर कुछ भी fields specific validations हैं, they are going to be performed on the data which is present in this table. Once all those validations are successful, the data is going to be transferred from the interface table to the base table। ये जो POZ suppliers करके है, ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यहाँ पे टेबल, यहाँ POZ सप्लायर कॉन्टैक्ट्स भी है, राइट। उसके बाद नीचे नीचे जाते जाओगे तो POZ सप्लायर साइट्स करके भी है। उसके बाद अगर एड्रेसेस पे जाओगे या कहीं एड्रेसेस क्या इस चीज़ का देखोगे तो ये POZ सप्लायर एड्रेसेस की इंटरफेस है, और सिमिलरली POZ सप्लायर का एड्रेसेस भी रहेंगे। सप्लायर कॉन्टैक्ट के एड्रेसेस का इंटरफेस है ये। INT वाला टेबल सब इंटरफेस टेबल्स हैं, ठीक है। यहां पे क्लियर आ रहा है कि ये टेबल इंटरफेस टाइप का टेबल है, ठीक है। यहां पे सारे कॉलम्स दे रखे हैं और कॉलम्स की इसकी डेफिनेशन नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि हर कॉलम में क्या डेटा स्टोर होगा। इतना क्लियर है? सर कनेक्ट हाँ सर कनेक्ट कैसे करेंगे आईडी टेबल में? सर एक और बार बता दो। कनेक्ट कैसे करेंगे? सर अगर कोई बाहर के एप्लीकेशन में डाटा है तो सर किसी पर्टिकुलर नहीं, कनेक्ट कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे दीपक। अभी सिर्फ मैं टेबल्स का बता रहा हूँ। अभी तुम्हें सिंपली ये समझना है कि जो _INT टेबल हैं, दे आर दी इंटरफेस टेबल्स। देयर आर मल्टीपल _INT टेबल्स अगर तुम यहाँ पे देखोगे। एड्रेसेस है, कॉन्टैक्ट्स है। इंटरफेस टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे किसी बाहर की एप्लीकेशन में से डेटा लेकर आना है फॉर सप्लायर एड्रेसेस एंड ऑल, राइट, आई विल नीड अ इंटरमीडिएट टेबल where I can pull the data from the third party application. I can do all the validations on that intermediate table, and whatever successful records are there, I will be only moving those successful records into the base table. For suppliers case, POZ suppliers INT में से POZ_suppliers में data जाएगा after all the validations pass for those records in that interface table. जो नहीं पास करेंगे validations, they will still remain in the interface table. You can either purge them, delete them, or you can extract those errored records, send it back to the source system. वहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ ठीक करके वापस से फाइल भेजेगा, and then we can import it back. ये करेंगे हम लोग डिटेल में, बट अभी के लिए सिर्फ समझो कि इंटरफेस टेबल इज अ इंटरमीडिएट टेबल where data comes, you perform the validations. If the validations are successful, it goes into the base tables. Otherwise,
it is left there itself. ये क्लियर है गाइस? एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है. अब जैसे ये टेबल्स हैं प्रोक्योरमेंट के, राइट? अगर मैं प्रोक्योरमेंट वापस इस पे जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन पे, राइट, all books, and again यहाँ पे अगर कॉमन फीचर्स पे जाता हूँ, राइट, हेयर आई शुड बी एबल टू सी सम ऑफ द कॉमन टेबल्स. ओके, जैसे एप्लीकेशन टूल किट में अगर मैं खोलता हूँ, राइट, यहाँ पे ATK करके टेबल्स हैं. ठीक है, मिडलवेयर एक्सटेंशंस के क्या टेबल हैं वो सब चीज़ें रहेंगी. ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू पढ़ सकते हो कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस गाइड. ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होंगे बट स्टिल यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज टेबल्स. दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, राइट, कि अगर मैं यहां पे लिखता सप्लायर क्वेरी इन ओरेकल फ्यूजन, राइट, तो यहां पे मेरे पास बड़े ब्लॉग्स हैं जहां से मैं डेटा निकाल सकता हूं. ठीक है, यहां पे उसने पूरी क्वेरी दे रखी होगी. ये देखो कौन से टेबल्स हैं, POZ सप्लायर्स है, HZ पार्टीज है, HZ पार्टी साइट्स है, HZ पार्टीज का ये कॉन्टैक्ट निकालने के लिए, और ये सब चीज़ें. यहाँ पे वेंडर साइट क्वेरी अलग से दे रखी है, राइट. अगर गूगल सर्च किया होता तो आई एम श्योर मेहनत करने का मूड होगा तो सब मिलेगा, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा. यहाँ पे लिखा हुआ POZ सप्लायर साइट्स ऑल, पार्टी साइट्स, HZ लोकेशंस एंड ऑल. तो जो एड्रेसेस का डेटा है वो HZ लोकेशंस वाले टेबल में चले जाता है. ठीक है, क्लियर है? ये सप्लायर डिटेल्स, वेंडर साइट और ये सब चीज़ें यहाँ से बड़े इजीली देख सकते हो. यहाँ से वो भी मिल जाएंगे कि एक दूसरे के उस टेबल्स के ज्वाइन किए हैं. ये HZ पार्टी साइट्स है या जो भी है, पार्टी साइट आईडी को पार्टी के साथ ज्वाइन किया, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इन्होंने. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बिना मेहनत के तो नहीं मिल पाएगी वो चीज़. ठीक है, ये क्लियर है? टेबल्स कैसे निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर यूजर्स के टेबल निकालने होते, राइट, तो वो भी यहाँ से बड़ा इजीली निकाल सकते थे. यूजर्स टेबल इन ओरेकल फ्यूजन, ये पर अंडरस्कोर यूजर्स टेबल है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट. अगर मुझे फ्यूजन यूजर रोल्स SQL क्वेरी एंड टेबल्स अगर यहाँ से निकालना होता तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता था. पर यूजर रोल्स DN TL. अब ये TL टेबल क्या था सहज? यस सर. TL टेबल क्या था? लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज होती है हाँ, उसके लिए स्पेसिफिक है. तो ये रोल की डेफिनेशन है, राइट. रोल की जो डिस्क्रिप्शन है इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट. दैट इज वाई पर अंडरस्कोर रोल्स अंडरस्कोर DN और TL डिफरेंट टेबल हैं. इसके अंदर सिर्फ उसका रोल ID होगा, बट जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है दैट विल बी स्टोर्ड अंडर दी TL टेबल. ठीक है. यस सर. अगर अरबिक है तो अरबिक में डिस्क्रिप्शन स्टोर होगी, फ्रेंच है तो फ्रेंच में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में. में से एनी डाउट्स एनीबडी हैज फ्रॉम यस्टरडे सेशन? नो सर. So I am assuming this is a no from everybody, right? सर एक बार इम्प्लीमेंटेशन यूजर को थोड़ा सा बता दीजिए. यार इम्प्लीमेंटेशन यूज़र अभिषेक क्या बार बार बताएंगे, राइट, कि जब इम्प्लीमेंटेशन यूज़र वो है जिसके साथ कोई भी वर्कर एसोसिएटेड नहीं है, ना एम्प्लॉय ना कंटिजेंट वर्कर, वो इम्प्लीमेंटेशन यूज़र है. ओके सर. ये तो कल भी बताया था सेम चीज़, राइट, कि इम्प्लीमेंटेशन यूज़र वो है जिसके साथ ना तो कोई एम्प्लॉय एसोसिएटेड है ना ही कोई कंटिजेंट वर्कर एसोसिएटेड है. ओके सर.
ठीक है। एंड टिपिकली इम्प्लीमेंटेशन यूजर्स हमारे जैसे कंपनियों के लोग होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं, राइट। दे नीड टू डू द कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप्स, and once they are done, because they are not either an employee or a contingent worker, so they are not created in the application as those records. तो जो यूजर होता है वो it is not associated to either a contingent worker or an employee. ओके सर, ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ है? दीपक, नो सर। अमृतपाल, कोई? सर एक बार हाँ सहज बताओ। सर वो एक बार वो बता दीजिए कि हम रोल पे कैसे एक्सेस करेंगे, हमें अगर एम्प्लॉयज के रोल्स देखने हैं। वो कैसे एक्सेस करेंगे? नेविगेटर पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले टूल्स, फिर सिक्योरिटी कंसोल। ये रटना मत, ये चीज़ें जैसे जैसे करोगे, राइट। टुमारो वील गिव यू द इंस्टेंस फॉर अ प्रैक्टिस ऑल्सो, सो यू कैन डू दैट, ठीक है। रोल यहाँ पे लिखा, लेट्स से अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो, पहले एक्सपैंड टूवर्ड्स यूजर्स, और यहाँ पे शो, एक मिनट रिफ्रेश हुआ नहीं है, एक मिनट, और यहाँ पे शो यूजर्स। तो यहाँ पे ये अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट किस किस यूजर को लगा हुआ है, राइट। वी कैन सी दैट इंफॉर्मेशन। यही पूछ रहे थे सहज या कुछ और? या श्रेया? कौन थी श्रेया? यस सर, यही क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। और है किसी को कोई क्वेश्चन? इट इज विच इज दी सप्लायर्स। सो सप्लायर्स क्रिएट करने से पहले, राइट, देयर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स विच यू नीड टू बी अवेयर बिफोर वी कैन क्रिएट सप्लायर्स। दो चीजें दिमाग में रखना, ठीक है। पहली कि what roles have been assigned, what roles need to be assigned to a user so that they can create suppliers. और दूसरे नंबर पे suppliers can be created or maintained only by the users who have an associated employee or a contingent worker with them. The supplier information cannot be edited by implementation users alone. उसका रीजन ये है कि सप्लायर कौन कर सकता है मॉडिफाई या एडिट. It is not only dependent on the roles which have been assigned to the user, but also the user who can modify a supplier information must be defined as a procurement agent or a buyer in the application. क्लियर है ये पॉइंट? मैं वापस से आई विल एक्सप्लेन कि एक यूजर या फिर इम्प्लीमेंटेशन यूजर कैन नॉट क्रिएट और एडिट द सप्लायर एंड सप्लायर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक इट्स साइट्स, एड्रेसेस एंड ऑल. A supplier can only be edited by the user, or a supplier details can only be edited by the user who has been defined as a procurement agent or a buyer in the application, and they have the required roles to do that activity of editing a supplier or modifying a supplier. ये पॉइंट क्लियर है? जो यूजर, एक तो रोल्स है, राइट, टू डिफाइन अ सप्लायर, और सेकंड नंबर पे वो यूजर हैज टू बी डिफाइंड एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट और अ बायर. मैं वापस से रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है. अगर जिस यूजर से मैंने लॉग इन कर रखा है, राइट, द यूजर विद विच आई हैव लॉग्ड इन, ही और शी शुड बी एबल टू edit the supplier related details like supplier sites and other things, right? He or she should not, that user should not be an implementation user, which means that the user should be associated to either an employee or a contingent worker. One. Second, that employee or the contingent worker which we have associated with the user must be defined as a procurement agent. And third,
the user with which we have logged in must have the supplier manager or the supplier administrator job role. Supplier manager और supplier administrator job role है. Procurement agent की तरह हमें उस employee को define करना पड़ेगा, और जिस employee को हमने procurement agent या जिस contingent worker को हमने as a procurement agent define किया है, that employee or contingent worker must be associated to that user. ठीक है, ये 3 सेटअप्स हैं. ठीक है, मैं फटाफट से सबसे पहले तुम्हें रोल दिखाता हूं कि क्या है. टूल्स एंड सिक्योरिटी कंसोल के अंदर गए. यूजर, लेट्स सर्च विद द यूजर. इफ आई ओपन दिस यूजर, you will see there is a supplier manager and a supplier administrator role which is associated. ये दिख रहा है? Yes, sir. This is the role which is going to be enabling, especially the supplier administrator, which is going to enable me to manage or edit my suppliers. ठीक है? और supplier manager बेसिकली अगर मुझे क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो ये अगर सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटर रोल उस दिन हमने किया था, राइट, कि स्पेंड ऑथोराइज्ड और प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स हैं. अगर वो वाले नोटिफिकेशंस आने हैं मुझे एंड आई हैव टू अप्रूव और प्रमोट अ सप्लायर फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव सप्लायर टू स्पेंड ऑथोराइज्ड, देन आई विल नीड द सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटर रोल फॉर श्योर. उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, ये 2 रोल हैं, जॉब रोल्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ सप्लायर परस्पेक्टिव. अभी के लिए इतना समझ लो. ठीक है, देन वील गो बैक टू द होम. उस दिन राहुल सर वुड हैव, और लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट FSM, राइट? अलॉन्ग विद राहुल सर यू वुड हैव डिस्कस्ड फंक्शनल सेटअप मैनेजर करके. यस और नो? यस सर. नेविगेटर में जाएंगे, माई एंटरप्राइज, एंड हेयर यू कैन क्लिक ऑन setup and maintenance and you will navigate to the functional setup manager work area. This is the area where we perform all the setup related tasks. जितने भी setup या configuration हम लोग बोलते हैं, राइट, attribute set करना, variable set करना, कुछ भी करना, वो हम सब इस area में आके करते हैं. While you discussed about the FSM other day, right? He would have told you at the top level there is something called as an offering, right? ये जो financials है ये एक offering है. Financials के अंदर जो different modules हैं, right? Accounts payable, accounts receivable, cash management and all, they are all known as functional areas. ये देख रहे हो functional areas दिखे हुए हैं? Yes, sir. सबसे ऊपर offering, फिर functional area. और हर फंक्शनल एरिया के अंदर देर आर इंडिविजुअल टास्क्स और अ ग्रुप ऑफ टास्क विच वी नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू सेटअप और कॉन्फ़िगर दैट एप्लीकेशन. अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रोक्योरमेंट एजेंट टास्क की, राइट? एक प्रोक्योरमेंट एजेंट कैसे डिफाइन हुआ है, ये देख रहे हो. मैनेज प्रोक्योरमेंट एजेंट्स करके एक टास्क आ रहा है. Yes, sir. इफ आई क्लिक ऑन दिस टास्क, इट विल ओपन अनदर वर्क एरिया जहां पे ये मैनेज प्रोक्योरमेंट एजेंट्स करके यहां पे दिख रहे हैं. ठीक है, देर आर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, BU विच इज अ बिजनेस यूनिट एंड ऑल. अभी के लिए इसको इग्नोर करो एंड जस्ट लेट्स सर्च फॉर राधेश. ठीक है, द यूजर विथ विच वी हैव लॉग्ड इन. ओके, मैनेज प्रोक्योरमेंट एजेंट्स में इसको कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? सॉरी, सोनी से आएगा, नॉट विद दिस थिंग. कैन यू सी दिस? Yes, sir. कि मैंने जो यूजर से लॉगिन कर रखा है, राइट, rathesh.sony.amicon global उस यूजर को हमने प्रोक्योरमेंट एजेंट बना रखा है फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स. ठीक है, ये बनाना जरूरी है, अदरवाइज मैं सप्लायर्स का मेजर सेटअप का जो टास्क है वो नहीं कर पाऊंगा. 2 चीजें देख ली हमने, एक तो जॉब रोल्स क्या क्या असाइन थे, सप्लायर मैनेजर और सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटर, और एक इस यूजर को हमने प्रोक्योरमेंट एजेंट बनाना हमें जरूरी है.
ये एम्प्लॉई या कंटिंजेंट वर्कर है, ये यूजर नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ये जो एजेंट है अगर मैं नया क्रिएट करना चाहता हूं, राइट, लेट्स अज्यूम, तो यहां पे मैं कोई भी प्रोक्योरमेंट बीयू एक बार ही सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी इसके लिए मत सोचना कि क्या है या क्या नहीं। यहां पे अगर एजेंट देखोगे, राइट, तो दिस इज योर एम्प्लॉय नॉट द यूजर। ठीक है, ये एम्प्लॉय के सर्च पैरामीटर्स हैं, उसके नहीं है, यूजर के नहीं है। तुम्हारे जॉब लिख रखा है यहां पे एंड ऑल, राइट गाइस, क्लियर? ठीक है, यहां अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखूंगा तो ये सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं। इसमें से मैं किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके, जैसे ये है जाकिर, इसको ओके करके आई कैन क्रिएट हिम एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट। सो दिस इज एन एम्प्लॉय whom I am designating as a procurement agent for this specific business unit। ठीक है, और यहां पे नीचे देखोगे एक मैनेज सप्लायर्स करके एक प्रिविलेज है, दिख रहा है? अगर मैं इसको डिसअलाउ कर दूंगा तो ये वाला जो बंदा है वो बाकी सारे काम कर सकता है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। रिक्विजिशंस को मैनेज कर सकता है, परचेज ऑर्डर्स को कर सकता है, बट वो सप्लायर्स को नहीं कर पाएगा बिकॉज वो अलाउड नहीं है उसको। ठीक है, इसलिए प्रोक्योरमेंट एजेंट बनाना जरूरी है। प्रोक्योरमेंट एजेंट बना के इसको, ये एजेंट को एक्सेस देनी भी जरूरी है कि ही और शी शुड बी एबल टू मैनेज सप्लायर्स। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और डन कर देते हैं। FSM अगेन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये ऑफरिंग है जो फाइनेंशियल्स है, राइट, उसके अंदर ये डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं। हर फंक्शनल एरिया के अंदर देयर माइट बी इंडिविजुअल और देयर माइट बी अ ग्रुप ऑफ टास्क विच वी नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर। मैनेज प्रोक्योरमेंट एजेंट्स इज वन ऑफ सच टास्क। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ न्यू सप्लायर इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर न्यू सप्लायर क्रिएट करना है, सिंस द यूजर विद विच आई हैव लॉग्ड इन हैज बिन असाइंड द सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटर एंड द सप्लायर मैनेजर रोल। ठीक है, इफ आई गो बैक टू द होम पेज, you will see there is a tab which is procurement available for me। ये procurement tab इसीलिए आई है बिकॉज मेरे पास वो जॉब रोल्स असाइंड हैं। ठीक है, ये procurement के अंदर ये सप्लायर्स दिख रहा है। इफ आई क्लिक ऑन दिस आई विल नेविगेट टू दी सप्लायर्स वर्क एरिया पेज। ये है सबसे पहला पेज जो कि मुझे नजर आएगा इफ आई एम गोइंग टू बी नेविगेटिंग टू दी सप्लायर्स वर्क एरिया। ये सबसे पहले देखो, सप्लायर स्पेंड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। मैंने बताया था, राइट, सप्लायर स्पेंड ऑथराइज हो सकते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले अगर वो सप्लायर्स के साथ हमारा कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप कभी भी नहीं था या है, ही वुड बी इनिशियली क्रिएटेड एज अ प्रोस्पेक्टिव सप्लायर, एंड वंस वी डिसाइड और वंस वी क्वालिफाई हिम कि हम इसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, वी प्रमोट दैट सप्लायर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव सप्लायर टू अ स्पेंड ऑथोराइज्ड सप्लायर। इज दैट क्लियर? यस सर। ये साथ में एक नोटपैड जैसा दिख रहा है, राइट, ये राइट हैंड साइड पे जहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी है और ये सब चीजें, ये टास्क हैं। देर आर मल्टीपल टास्क विच वी कैन क्रिएट, सॉरी, विच वी कैन परफॉर्म फॉर दी ऑन दी सप्लायर्स वर्क एरिया। One of those tasks is manage suppliers, other one is register, create, import, merge. There are multiple tasks which are related to a supplier. So अगर तुम logically देखोगे, there are lot of things which Oracle has created in a or grouped in a logical manner.
So whatever we need to do for a supplier is all those related tasks are available here on this work area. तो यूजर को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. यूजर डज नॉट नीड टू नेविगेट हेयर और देयर in order to perform tasks related to suppliers. He can just navigate to the supplier's work area and perform all the related tasks over here. This is clear? Yes, sir. अगर मुझे supplier manage और create में क्या फर्क है, is everybody aware or no? Yes, sir. क्या होता है अभिषेक? Like creating is like creating new supplier from scratch, creating a new supplier. हाँ. And managing is like we have already created a supplier and we gonna We want to update its information or edit its information. बिल्कुल सही है. So creating a supplier is creation of a new record for the supplier altogether, whereas managing a supplier is managing an existing record of supplier which was created earlier. तो मैनेज और क्रिएट बहुत जगह आएगा. क्रिएट अ जॉब, मैनेज अ जॉब, क्रिएट अ पोजीशन, मैनेज अ पोजीशन, राइट. तो हर बार कॉन्सेप्ट सेम ही है. क्रिएट मतलब न्यू रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. मैनेज मीन्स वी आर गोइंग टू बी एडिटिंग और अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड. ठीक है. Yes, sir. अगर मुझे ये क्रिएट सप्लायर और मैनेज सप्लायर क्यों दिख रहा है? बिकॉज आई हैव दोज जॉब रोल्स विच वर असाइंड टू मी प्राइमरली ऑफ सप्लायर मैनेजर. ये सप्लायर स्पेंड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट और ये सब सेक्शन के अंदर मैं एक्शन तब ले पाऊंगा अगर मेरे पास सप्लायर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होगा. सो नाउ टू क्रिएट अ सप्लायर आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक. ये सबसे पहले ये बेयर मिनिमम सा एक इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स मुझे देगा. वेयर द फील्ड्स विच आर मार्क्ड विद दिस स्टार, राइट, दे आर मैंडेटरी फील्ड्स. ये कॉमन नोटेशन है, राइट, हर जगह यही यूज होती है. तो आई विल एड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स से टेस्ट 1 EMI ग्लोबल. ठीक है. बिजनेस रिलेशनशिप इज वेयर वी स्पेसिफाई वो प्रोस्पेक्टिव सप्लायर है या स्पेंड ऑथोराइज्ड सप्लायर है. सिंस अभी हम नेक्स्ट इसको इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आई एम गोइंग टू डेजिग्नेट दिस एज अ स्पेंड ऑथोराइज्ड बिकॉज आई वांट टू हैव द फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद दिस सप्लायर. ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है? जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, राइट, तो देर आर मल्टीपल टाइप्स. इट कुड बी अ private limited company, a public limited company, a partnership firm, or different types of organization might be there. So the organization type over here is one of those things. Okay, so इसको मैं let's say corporation करके designate कर देता हूँ फिलहाल. So अगर दूसरी चीज कल मैंने बताई थी, right, value set और lookup की, तो अगर तुम देखोगे आई कैन नॉट एंटर एनीथिंग विद माई ओन विश. आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम अ प्री स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, राइट. तो अगर तुम्हें मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यूज हैं, कॉर्पोरेशन, फॉरेन कॉर्पोरेशन, जितनी भी ये चीजें हैं, दे आर ऑल डिफाइंड एज पार्ट ऑफ अ लुकअप. ये स्टैटिक लिस्ट है, दिस इज नॉट अ डायनेमिक वन. सो इसको हम लुकअप के अंदर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है. वील हैव अ लुक एट इट. ओके, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट कि लुकअप या वैल्यू सेट के अंदर जो मैंने वैल्यूज डिफाइन की हैं, और अगर इस टैक्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप फील्ड के साथ मैंने वो लुकअप को एसोसिएट किया है, देन आई कैन ओनली सिलेक्ट फ्रॉम दिस प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड नॉट एनी रैंडम वैल्यू विच आई वॉन्ट टू और विच आई डिजायर. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये क्लियर है? यस सर. टैक्स कंट्री और ये दे आर नॉट मैंडेटरी फील्ड, सो आई विल नॉट बॉदर अबाउट देम एंड आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. ठीक है. अभी अगर हम देखते हैं, राइट, टेस्ट 1 EMI ग्लोबल करके जो चीज है, ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट. So once I am there on the BI thing, I'll create a data model.
I will say that I want to create a data model of type SQL query. Give a name over here. Select the data source FSCM और यहाँ पे मैं SQL query लिखूंगा. Then the supplier name is not going to be under POZ suppliers, right? You would have recognized that. For that I have to join this table with HZ parties. ये जितने भी टेबल HZ से शुरू होते हैं, राइट, दे आर पार्ट ऑफ योर TCA और द ट्रेडिंग कम्युनिटी आर्किटेक्चर. ठीक है. अब यहाँ पे ज्वाइन किया वेयर HP डॉट पार्टी ID इज इक्वल टू PS डॉट पार्टी ID एंड नेम के साथ हम करना चाहते हैं, राइट. तो HP डॉट पार्टी अंडरस्कोर नेम लाइक %global. अब मुझे नहीं पता कि मैंने ग्लोबल कैपिटल में दिया है या उसमें दिया, राइट. इफ आई वांट टू डू दैट, हाउ कैन आई डू दैट? इफ आई वांट टू कंपेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ केस, if I want to compare the data in one of the columns with this thing, right, without caring that whether it's uppercase, lowercase or what, how can I do that? ठीक है. तो जब हमने एग्जीक्यूट किया उसको, तो देयर इज अ सप्लायर विच हैज बीन क्रिएटेड विद test1 EMI ग्लोबल. ठीक है. इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. ठीक है. उसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वी कैन क्रिएट अनदर सप्लायर एंड शो. बट जब क्रिएट किया है तो उसने जाकर डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और कमिट कर दिया है उसको. ठीक है. Next step is we are going to fill in the required details which are under different tabs over here. ठीक है. अब टैक्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप और ये सब चीजें आ गई. अब सप्लायर टाइप भी देखोगे, राइट. दिस इज ऑल्सो अपियरिंग एज अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, राइट. अब लेट्स अज्यूम मैं इसको कॉन्ट्रैक्टर की तरह लिखता हूं. ये कॉन्ट्रैक्टर जो वैल्यू है वो कहां से आ रही है? लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दैट एज वेल. ठीक है. इसको खोलने के बाद लेट्स गो टू योर सेटअप एंड मेंटेनेंस, बिकॉज लुकअप्स ऑल्सो बी डिफाइन ओवर देयर इन दी सेटअप एंड मेंटेनेंस ओनली. तो पेबल्स के अंदर जाके लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग. यहाँ पे शो रिक्वायर्ड टास्क की जगह आई वांट टू हैव अ लुक एट ऑल टास्क्स. ठीक है. एंड लेट्स लुक एट दी लुकअप्स करके यहाँ पे एक आएगा, मैनेज पेबल्स लुकअप्स करके. ठीक है. और लुकअप टाइप. अब लुकअप टाइप इजी, अगर मुझे आसान देखनी है ये चीज़, राइट, इफ आई वांट टू इजीली फाइंड इट, तो आई टिपिकली गो टू दिस टेबल. ठीक है. इस ग्रुप को वापस से मॉडिफाई करते हैं. वील पुट अ कमेंट अराउंड दिस स्टेटमेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू एग्जीक्यूट इट. एंड सिंपली हम सिलेक्ट फ्रॉम FND लुकअप्स करके एक टेबल है. वेयर डिस्क्रिप्शन लाइक कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. सिलेक्ट स्टार करके कर चलते हैं इसको. लेट्स ट्राई टू फाइंड दी डेटा. इससे मैं क्या करने, देयर इज नथिंग लाइक हेयर विच इज मीनिंग करके एक वो है, नॉट probably the description column, where meaning column like contractor. ये देख रहे हो POZ अंडरस्कोर वेंडर टाइप करके लुकअप टाइप मेरे पास आ गई. उसके अंदर एक लुकअप कोड है कॉन्ट्रैक्टर जिसकी मीनिंग ये है. बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई डोंट नीड टू रिमेंबर. अगर मुझे टेबल्स का आइडिया है कि कहाँ पे स्टोर होता है. ठीक है. तो POZ अंडरस्कोर वेंडर अंडरस्कोर टाइप अगर मैं नोट कर रहा हूँ, देन आई विल जस्ट गो बैक ओवर हेयर
yes, and I will say POZ underscore vendor and click on search. यहाँ पे नहीं आ रहा है. Okay, if you do not get any lookup over here, then you can simply go and search for the common lookups करके. Okay, let's say manage या फिर lookups करके यहाँ पे एक search करेंगे task. ठीक है, define lookups नहीं, manage. ये प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है सिंस सप्लायर, ये इसके अंदर रहेगा. बट लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड दी लुकअप्स फॉर एवरीथिंग. या फिर सप्लायर लुकअप में आएगा. एक सेकंड होल्ड करो. इस पे करते हैं एक बारी मैनेज स्टैंडर्ड लुकअप्स. POZ vendor Can you see this? Guys, can you see this? Under the manage standard lookups type, अगर मैं POZ vendor कर रहा हूँ, right? These are the values which are defined. Lookup code is all capital over here. This is the unique thing which is there. This is the display sequence in which the lookups are being displayed. And these are the values you can look at. Meaning, राइट अगर मैं इसको डिसेबल या इनेबल कर दूंगा, यू विल सी दैट आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट वैल्यू. लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर को ही डिसेबल कर देते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, और वापस से खोलेंगे उसको फॉर्म को, बिकॉज ऐसे नहीं दिखेगा वो. सेव. ठीक है, इसको एक बार ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये तो बन ही गया है, हमारा सप्लायर तो बन ही गया है. अभी इसको कॉन्ट्रैक्टर की जगह लेट्स से सप्लायर करते हैं. अभी कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है राइट टू एवरीबडी, बिकॉज ये अभी ऑलरेडी वो है, हम लोगों ने क्वेरी कर रखा है या डेटाबेस अभी उससे उसने लेटेस्ट रिफ्रेश नहीं किया. बट अगर अभी मैं करूँगा इसको कैंसिल करके वापस से, आई विल कम ऑन टू टेस्ट वन एमिकॉन ग्लोबल या द सेम सप्लायर एंड देन वील सी. लेट्स सर्च फॉर द सप्लायर अगेन under manage suppliers. ये रहा supplier record. Let's click on edit. Can you see that contractor thing has gone? Sorry, यहाँ पे. Yes sir. ठीक है, because we disabled it over from there. ठीक है, वापस एनेबल कर देंगे, वापस सेव कर देंगे तो वापस से वो आ जाएगा. सो दिस इज हाउ अ लुकअप टाइप इज बीइंग डिफाइंड, राइट. लुकअप टाइप एक टेम्पररी टेबल टाइप सी समझ लो उसको, जहाँ पे सर्टन कॉलम्स हैं. द लुकअप कोड इज योर प्राइमरी की, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड. देन यू हैव द मीनिंग, द डिस्प्ले सीक्वेंस इन विच इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड if this lookup type is being used in the application. ठीक है, ये क्लियर है गाइस? ठीक है, उसके बाद देर आर अदर डिटेल्स विच आर प्रेजेंट ओवर हेयर बट नन ऑफ देम आर मैंडेटरी, सो आई एम गोइंग टू स्किप देम फॉर नाउ. ठीक है, तो सप्लायर का एक बेसिक प्रोफाइल, उसका नाम और उसकी सप्लायर टाइप क्या है और ये सब चीज़ें हम लोगों ने एंटर कर दी. देन वी गो टू इट्स एड्रेसेस. ठीक है, सप्लायर का एड्रेस क्रिएट करने के लिए कि उसका कौन कौन सी लोकेशन है, आई विल क्लिक ऑन क्रिएट. I will give a name to this address. Let's say
चंडीगढ़ या फिर मोहाली एड्रेस, कुछ भी नाम दे सकते हो लॉजिकल. यू नीड टू स्पेसिफाई द कंट्री. The fields might change if you see based on the country I selected. Earlier, this city or town and other things were not appearing. अगर मैं कुवैत करूंगा तो totally different हो जाएगा. Right? Can you observe? Guys, can you observe that? यहाँ मैंने इंडिया लिखा, राइट. अगर इंडिया लिख रहा हूं तो देखो नीचे क्या चेंज हो रहा है. सिटी का सिटी और टाउन बन गया, स्टेट जिप कोड का पिन कोड बन गया. ठीक है. सो आई फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द मैंडेटरी फील्ड्स. उस दिन मैंने बताया था, राइट, वेदर दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग और पेमेंट्स और फॉर RFQ, राइट. ये एड्रेस का क्या पर्पस है. I can enable the values over here. मैं सभी के लिए enable कर रहा हूं इस चीज को. ठीक है. And I'll click on save. ठीक है. अब सप्लायर एड्रेस के नीचे उस दिन मैंने बताया था क्या क्रिएट होगा. या तो कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे, एड्रेस लेवल पे हम लोग क्रिएट करेंगे, या फिर साइट्स क्रिएट करेंगे, राइट. याद है. यस सर. ठीक है. तो पहले एक बार साइट क्रिएट करते हैं. साइट जब क्रिएट करेंगे, राइट, साइट ऐसे नहीं, साइट एक बारी सेव करके वापस से आएंगे ताकि प्रॉपर फॉर्म दिखे तुम्हें. इसको कैंसिल कर देते हैं फिलहाल एक बार. ठीक है. ये एड्रेस बन गया इसका. यस सर. ठीक है. अब हम साइट्स वाली टैब पर जाते हैं एक बार. अब साइट्स वाली टैब पे अगर आप क्लिक करोगे क्रिएट, तो यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा कि इसका प्रोक्योरमेंट BU कौन सा है, राइट. लेट मी जस्ट अभी के लिए बिजनेस यूनिट और ये सब चीजें मत सोचो क्या है. ये साइट किस एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है. देख रहे हो कि एड्रेस नेम आई हैव टू सिलेक्ट. देयर कैन बी मल्टीपल एड्रेसेस ऑफ अ सप्लायर and each site is associated to an address. That's what we discussed, right? Yes or no? यस सर. ये एड्रेस कर लिया. यहां पे एड्रेस उसका डिफॉल्ट हो गया. साइट का नाम इज गोइंग टू कम बाय डिफॉल्ट एज द नेम व्हाट वी हैड गिवन टू द एड्रेस, बट यू हैव ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू चेंज इट. लेट्स से यहां पे हमने लिख दिया ODC ऑफिस. ठीक है. क्लियर है. यहां पे साइट पर्पस भी परचेजिंग और पेमेंट, राइट, इज कमिंग फ्रॉम द एड्रेस बिकॉज वी enabled it for the address. That is why it is coming over here. ठीक है. इसको मैं सेव कर देता हूं. जैसे ही सेव करूंगा यू कैन सी देयर आर टैब्स विच गॉट enabled एट द लोअर लेवल, राइट. अब यहां पे जाके मुझे कुछ ना कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी जो कि सप्लायर साइट लेवल की डिटेल्स है. एट द साइट लेवल आई डिफाइन दी कमर्शियल रिलेशनशिप विद दी सप्लायर कि मेरी क्या पेमेंट टर्म्स होंगी. ठीक है. मेरा पेमेंट टर्म्स की हमने बात की थी, याद है. यस सर. उसके साथ कम्युनिकेशन मेथड क्या होगा, ईमेल, फैक्स, या फिर हम प्रिंट करके भेजेंगे परचेज ऑर्डर, या क्या करेंगे, राइट. ये सब चीजें हम डिफरेंट टैब्स के अंदर जाके देंगे. उस दिन मैंने एक टर्म यूज की थी फ्री ऑन बोर्ड, FOB, यस सर. राइट. यहां पे मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूं. ठीक है. अगर मैं इनवॉइसिंग पे जाऊंगा तो आई कैन स्पेसिफाई कि इनवॉइस जो हम रेज कर या इनसे सप्लायर से जो इनवॉइस आएगा उसकी करेंसी क्या होगी, उस इनवॉइस की कितनी लिमिट है, मतलब वो मुझे कितने तक का इनवॉइस भेज सकता है, मैं उसको किस करेंसी में पे करूंगा, राइट. ये सब चीजें यहां पर हम स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है. दीज आर ऑल ऑप्शनल फील्ड, सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं दूं ही दूं. और यहां पे वो फील्ड आ गई जो पेमेंट टर्म्स की हम बात कर रहे थे, राइट. इमीडिएट के कितने दिन बाद पैसा ड्यू होगा.
इमीडिएट भी हो सकता है, स्केड्यूल्ड फॉर पेमेंट इमीडिएटली, या फिर पेमेंट इज ड्यू इन 30 डेज। हमने सिर्फ 2 ही बना रखी हैं ये, ठीक है। लेट्स अज्यूम आई एम सिलेक्टिंग दी पेमेंट ड्यू इन 30 डेज, नेट 30 हमने पेमेंट टर्म सिलेक्ट कर ली, ठीक। पेमेंट टर्म तो हम लाइक कुछ भी रख सकते हैं, अगर हम चाहे भी 60 या 90। हाँ नहीं, हम नहीं रख सकते, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो किस किस टर्म्स पे करती है। ऐसा थोड़ी ना कि हम 1 2 3 4 5 करके चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम पेमेंट 30 दिन बाद करेंगे, 60 दिन बाद करेंगे सप्लायर को, या 90 दिन बाद करेंगे, 45 दिन बाद करेंगे, 40 दिन बाद करेंगे। दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। तो उसके हिसाब से, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पेमेंट टर्म्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके सर। ठीक है। फिर पेमेंट्स टैब है, हर डिफरेंट टैब है। इस पेमेंट टैब पे जाके मैंने कहा था कि साइट के साथ हम लोग सप्लायर के बैंक अकाउंट्स को अटैच करते हैं, क्रिएट करते हैं, याद है। पेमेंट मेथड बताया था कि कौन कौन सा पेमेंट मेथड अलाउड है, चेक है, इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर राइट। ये आ गए पेमेंट मेथड्स, ये आ गए बैंक अकाउंट्स। अगर मुझे नया बैंक अकाउंट क्रिएट करना है सप्लायर का, तो यहाँ से क्रिएट करूँगा, क्लिक करूँगा क्रिएट, और यहाँ पे मैं सारी उसकी डिटेल्स डाल दूंगा बैंक अकाउंट की। बट बैंक अकाउंट क्रिएट करने से पहले बैंक और बैंक ब्रांच एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुवैत फॉर एग्जाम्पल, राइट, सिंस कुवैत, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा 1 2 3। यहाँ पे मैं बैंक नेम डालूंगा कि कौन कौन से बैंक्स वो हैं जो कि इधर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो उन्हीं बैंक्स में से है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे बैंक पहले जाके क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं ये सब चीज़ें कर पाऊंगा, राइट। अगर मैंने बैंक क्रिएट कर दिया तो उस बैंक के रिलेटेड कौन सी ब्रांचेज हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे, दरवाज़ा और किबला फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो लेट्स से मैंने किबला ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया। अपडेट पेड अनपेड इन्वॉइसेस का मतलब ये है कि अगर मेरे कुछ ऐसे इन्वॉइसेस हैं सप्लायर के जिस पे पेमेंट अभी नहीं हुई है, तो क्या ये बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन उन इन्वॉइसेस पर भी अपडेट कर दें या ना करें, राइट। लेट्स से अभी मैं येस कर देता हूँ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अकाउंट का नाम क्या है, कि सप्लायर का जहाँ बैंक अकाउंट है, राइट, उसमें उसने क्या नाम दे रखा है, एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। लेट्स से टेस्ट EMI 1 ग्लोबल, या कुछ भी, जो भी नाम दे रखा है उसने। ये क्लियर है, और क्लिक कर दिया मैंने ओके। तो मेरा सप्लायर का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड भी यहां पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इफ आई वांट टू कमिट दिस इंफॉर्मेशन, आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, एंड द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सप्लायर्स के लिए, विच इज़ सप्लायर साइट असाइनमेंट्स। ये क्या होती है क्या नहीं होती इसको हम बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना अपनी प्रैक्टिस करते हुए कि अगर साइट असाइनमेंट्स क्रिएटेड नहीं है तो ये सप्लायर का रिकॉर्ड यू विल नॉट गेट इन द लिस्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग द इनवॉइस। तो इसको सिंपली अभी ऑटो क्रिएट असाइनमेंट्स करके छोड़ देना कि ऑटो क्रिएट असाइनमेंट्स करके यहाँ पे क्रिएट हो गया एक रिकॉर्ड, और इसको मैंने सेव कर दिया। Is that clear? यस सर। और सर से एक बार ये साइट असाइनमेंट्स दोबारा बता दीजिए। site assignments is one of the most important things for a supplier. If the invoice can be created for that supplier or a purchase order can be created for that supplier. Typically ये payments के लिए है, ये उसके लिए भी नहीं है, purchase order के लिए नहीं है. This is more for the invoices. Invoices के लिए और purchase order दोनों के लिए है, sorry. ठीक है. This site assignment is an important thing for both your purchase orders and invoices. In case you are going to create an invoice for this supplier, a record should exist under the site assignments. If there is no record under site assignment, the supplier itself will not appear for your invoices. इन्वॉइस जब क्रिएट करने जाओगे और सिलेक्ट करोगे इन्वॉइस, वो इन्वॉइस दिखेगा ही नहीं तुम्हें, सॉरी वो सप्लायर दिखेगा ही नहीं उस सप्लायर की लिस्ट में, अगर ये साइट असाइनमेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड नहीं है. ठीक है, क्लिक कर किया, सेव एंड क्लोज. अब आए हम कॉन्टैक्ट्स पर.
कि सप्लायर के कॉन्टैक्ट्स क्या हमने बनाने हैं, राइट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हुए वी आर गोइंग टू जस्ट स्पेसिफाई द सेम डिटेल्स जो हम अपने बंदे के लिए देते हैं कि जिसके साथ हमें वहाँ पे मिलना है। जॉब टाइटल एंड ऑल दीज आर ऑल योर ऑप्शनल फील्ड्स बिकॉज देयर इज नो स्टार इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। फिर कॉन्टैक्ट का एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, सेव कर लो पहले एक बार। फिर कॉन्टैक्ट का एड्रेस इज गोइंग टू बी डिफॉल्टेड to the office address which we had or the supplier site address which we had created। अगर तो सेम ही एड्रेस है तो हम सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे, वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही डिस्कस किया था हमने उस दिन। और सप्लायर के कॉन्टैक्ट की एक ईमेल भी दे सकते हैं, vineet.kanial@amicon.co.in। मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड जस्ट सेव द रिकॉर्ड। So what we have done is we have created a supplier, we have created a supplier's address, we created a supplier site, we created the supplier site assignment, we created a supplier site bank account and we created this contact as well, right? जब हमने contact create कर लिया, we will again go back to the addresses and under addresses we'll just click on edit एंड यहाँ पे तुम देखोगे कॉन्टैक्ट्स करके एक टैब यहाँ पर भी है। उस दिन मैंने बताया था एड्रेस लेवल पे भी हम कॉन्टैक्ट असाइन कर सकते हैं। इफ आई गो ओवर हेयर यू कैन सी विनीत कान्याल विच आई attached or which I created at the supplier level and attached to that address is already here। देख रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए कि यहाँ पे भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगेन आई क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ सप्लायर, its addresses, its sites, contacts, bank account information and all। क्रिएट किया है, जैसे जैसे क्रिएट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेटा सिस्टम के अंदर जाते जा रहा है।